थ्योरम 6.1 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ ਐਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਥਿਓਰਮ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ BPT ਥਿਓਰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ BPT ਥਿਓਰਮ, ਜਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ, ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब तीनों तरह का क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट दी हो सकती है, प्रूव करना आ सकता है, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। मतलब कुल मिला के तुमने एदी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है। तो एदी स्टेटमेंट कहती की है बहुत ईजी है, देखने च लेंथी है बहुत ईजी। इन्होंने की है, मान लो कि ट्रायंगल है, कहते अगर मैं एक लाइन ड्रॉन करा किवें ट्रायंगल दी किसी भी दो साइड्स दे नु जॉइन करके अ लाइन इज ड्रॉन, एक लाइन बनाई गई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। कोई एक लाइन बनाई है, किवें बनाई है, एक साइड दे पैरेलल ते बाकी दो साइडां नु की कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। मतलब कि मान लो कैमरे जी बना लो, ऐ बना लो लाइन कि एक लाइन बनानी है किसी ट्रायंगल दी साइड दे पैरेलल ते बाकी दो साइडां नु की करे, इंटरैक्ट करे। ये लाइन तुम एम भी बना सकते हो, जी लाइन है वो किसी साइड की होवे पैरेलल ते बाकी दो साइडां नु की करे, इंटरैक्ट करे। मतलब अगर ट्रायंगल च तुसी एक लाइन बनाने हो, किस प्रकार बनाने हो कि वो बाकी टू साइड्स नु तां इंटरैक्ट करे ते थर्ड साइड दे की होवे, पैरेलल होवे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, अगर कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर कोई लाइन ड्रॉ की जा रही है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides, ਜਿਹੜੀ intersect ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ other two sides ਨੂੰ in distinct points, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ points ਤੇ intersect ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ other two sides ਹੈ are divided in the same ratio, ਜਿਹੜੀ sides ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ same ratio ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। मतलब मैंने ਕੀ proof करना है, तो proof ਕੀ करना है मैंने कि ਜਿਹੜੀ AD upon DB है वो किस ਦੇ इक्वल है, AE upon EC। द्वारती स्टेटमेंट का मतलब समझो। If a line is drawn, अगर एक लाइन अपने ड्रॉन की parallel to one side of triangle which intersect the other two side at a distinct point, अगर मैं एक लाइन ड्रॉन कर रहा ਜਿਹੜੀ ਕਿ ट्रायंगल ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ट्रायंगल ਦੀ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੋਗੀ ਇਸ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂਗੀ। मतलब AD upon DB ਕਿਹਦੇ ਕਰੂਗਾ, AE upon EC ਦੇ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਦੀ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ, AD upon DB equal AE upon EC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ DE ਪੈਰਲਲ ਹੈ BC ਦੇ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, DE ਜਿਹੜੀ ਉਰੋਂ ਤੋੜਦੀ ਪਈ मतलब AD upon DB equal AE upon EC। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ट्रायंगल ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ट्रायंगल ਦੀ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ सॉरी पैरेलल होगी ताकि होगी ਇਹਨੂੰ सेम रेशियो ਚ डिवाइड करोगे। ਜੇ पैरेलल है ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, सेम रेशियो ਚ ਇਹਨੂੰ डिवाइड करोगे। ਉਹ ਅਗਲੀ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ बोल गया बाय मिस्टेक। अगर ये पैरेलल है तो सेम रेशियो ਚ डिवाइड होगा। प्रूफ देखो नजायज इजी है, बहुत ज्यादा इजी है जे स्टेप वाइज लोगे। पहले ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁਆਇਨ BE ज्वाइन DC, BE ਨੂੰ ज्वाइन कर लो, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइन BE एंड ज्वाइन DC, BE लाइन ड्रॉ कर दो, ज्वाइन कर लो तो DC ਤੇ C ਨੂੰ ज्वाइन कर लो। मैं एक उरे परपेंडिकुलर घेरता ਤੇ ਕਿੱਥੇ परपेंडिकुलर घेरता, घेर सकदा परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट तो किਵੇਂ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकदा, किड्डी को ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ट्रायंगल ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾਰਜ ਬਣਾਵਾਂ। If a line drawn parallel to any one side of triangle and intersect the other two sides at distinct point, then that line divide the other two sides in the same ratio.
मतलब अगर ये 90 ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ AD upon DB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ AE upon EC ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੀਤੀ, B ਤੇ E ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, D ਤੇ C ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ E ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾਉਨ ਕੀਤਾ ਤੇ D ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾਉਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ M ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ N ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਉਨ ਕੀਤਾ, ਡਰਾ EM परपेंडिकुलर के उत्ते AD उत्ते, EM एक परपेंडिकुलर घेरे के उत्ते AD उत्ते ते DN कोई परपेंडिकुलर घेरे के उत्ते, DN कोई परपेंडिकुलर फॉल किते के उत्ते AE, EM परपेंडिकुलर घेरे AD उत्ते, DN परपेंडिकुलर घेरे AE उत्ते। उस तक कहानी लोट है। हुण देखो दा प्रूफ किवें करांगे। सब तो पहले देखो AD, बस जिवें जिवें चाहिदा ना उवें उवें चलदा चलो। सब तो पहले की चाहिदा तुहानूं AD। हुण AD दी गल किवें करांगे आपां, AD AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਚ AD ਸਾਈਡ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਜੂਗੀ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE, AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈंने ADE ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਈ। ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਹਾਫ ਇਨਟੂ बेस। इस ट्रायंगल दा बेस कौन है AD, हाइट कौन है EM, क्योंकि बेस केड़ा हुंदा है जिस दे उत्ते हाइट गिर रही हुंदी है। बेस आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन बेस केड़ा अपन लेना उहदे कोरस्पोंडिंग जिस दे उत्ते हाइट फॉल है। सिंपल जी गल है। सब तो पहले अपने AD दी गल करनी है, AD दी गल करनी है तो अपने ADE ट्रायंगल चक ली। एरिया ऑफ ADE केदे कोल होगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू AD इनटू EM, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगे की चाहिए मैनू DB, अगे की चाहिए मैनू DB, अगे की चाहिए DB। हुन DB लिए आप किहड़ी ट्रायंगल ले लिए DBE, ऊपर ले लिया DBE, DB साइड चाहिए, DB किहड़ी ले ली DBE। इन ट्रायंगल DBE। हुन इस दा एरिया किहदे कोल होगा, अगेन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हुन गल सुनो, जिहड़ी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुंदी है ना, जिहड़ी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुंदी है उसदी जो हाइट हुंदी है ना वो बाहर फॉल हुंदी है। अगर मान लो ये थोड़ी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब जिहदे च एक एंगल 90 तो वड्डा हुंदा है। जिहड़ी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुंदी है, जिहड़ी एक्यूट हुंदी है ओदा तो परपेंडिकुलर अंदर ही ड्रॉ हुंदा है ते इहदे एरिया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर देंगे। लेकिन जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुंदी है इसका जो परपेंडिकुलर हुंदा है बाहर हुंदा है। तो जब इहदा एरिया कढदे, मान लो A है, ये B है, ये C है ते ये मान लो मैंने कोई M ड्रॉ किया, तो जिहड़ी ABC ट्रायंगल दा एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ABC वो किहदे कोल होगा हाफ इनटू बेस। बेस तो आप यही लवांगे BC, क्योंकि ट्रायंगल आप ABC की गल कर रहे हैं। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कौन होगी A है। समझ गए कि इस ट्रायंगल दा ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल दा अगर एरिया फाइंड करना है तो आप किवें करांगे, हाफ इनटू बेस, बेस कौन है BC इनटू हाइट कौन है EM। जे तुसी बेस CM ले लिया, जे तुसी बेस CM ले लिया वो किहड़ी ट्रायंगल दे निकल जावा AMC दा। मतलब मैं तुहानू ये कहना चाह रहा कि जिहड़ी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हुंदी है उसका परपेंडिकुलर बाहर हुंदा है ते उसका एरिया ते ही होगा ABC ट्रायंगल दा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर हुंदी है, अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो नहीं रहा सी, बाहर करता किड्डी की गल है। समझ सके ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ਦਾ जो एरिया ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਸ DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ DBE ट्रायंगल ਚੱਕ ਲਈ। ਉਹਨੇ DBE ट्रायंगल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਕੋਣ ਲਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ DB, ਹਾਈਟ ਉਹਨੇ DB ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫॉल ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬਾਹਰ ਫॉल ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ EM। ਤਾਂ ਉਰ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ADE ट्रायंगल लेके हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लेके। DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ DBE ट्रायंगल लेके हाफ इनटू बेस इनटू हाइट लेके। ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ डिवाइड, दोनों च की चाहिए डिवाइड, तो आप की कर देंगे डिवाइड। मतलब जिमें जिमें चाहिए उवें मैं करी चलो। पहले AD चाहिए सी तो अपन ADE ट्रायंगल की गल कर ली, अगे DB चाहिए सी तो अपन DBE ट्रायंगल की गल कर ली, अगे डिवाइड चाहिए तो दोनों की कर देना अपन डिवाइड कर देना। अपना मतलब पूरा करो, अपन दूसरे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, देखो हम दोनों डिवाइड कर दिए, ए इक्वेशन 1 है, ए इक्वेशन 2 है। डिवाइड कर दो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन
अगर दोनों डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा चेक करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, ट्रायंगल DBE ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਹਾਫ ਨਾਲ ਹਾਫ ਕੱਟ ਜੂਗਾ, EM ਨਾਲ EM ਕੱਟ ਜੂਗਾ, ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ AD अपॉन में DB। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ AD अपॉन DB ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, AD ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ADE ट्रायंगल लेके हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, DB ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ एबल ट्रायंगल लेके हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਐਸ ਇੱਧਰ ਕਰਵਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ AE, ਅਗਰ AE ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਐਸ ਆਪਾਂ AE ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ADE, ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ADE, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE। ਹੁਣ ਬੇਸ AE ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ DL, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬੇਸ A ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਣਾ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਬੇਸ A ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਣਾ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਫੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ AE ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ AE ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, AE ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾਉਣ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ADE ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਕੌਣ ਹੈ AE इनटू हाइट, हाइट कौन है DL, हाइट कौन है DL। सेम एज नीचे की चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ EC, EC ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, एरिया ऑफ EDC, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, EDC ट्रायंगल एरिया हाफ इनटू बेस कौन है AC, आगे ने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਇੱਧਰ ਹੈ यार फील करो कुछ भी नहीं है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AD upon DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਏਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਈ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਫਿਰ DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਈ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ EM ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਇਧਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ DL ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, AE ਤੇ EC ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ, AE ਤੇ EC ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, इक्वेशन 3 डिवाइड इक्वेशन 4, जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC किहदे कोल होगा पूरे हाफ नाल हाफ कट जाऊगा, DL नाल DL कट जाऊगा तो क्या जाऊगा AE अपॉन AC। ਆਪਾਂ ਨੇ पूरा बोर्ड फिल करता लेकिन गल कुछ भी नहीं की, बहुत सिंपल है, जस्ट तुसी फिगर तो ही कंक्लूड कर सकते हो। मोटे मोटे तौर पे अपन जस्ट इन्नी गल की है, पहला अपने को ABC का ट्रायंगल सी, आपने शो करना सी कि अगर DE पैरेलल है BC दे तो शो करो AD अपॉन DB AE अपॉन EC दे इक्वल है, तो आपने की कीता ए दोनों ज्वाइन कीता, ये दोनों ज्वाइन करता, उरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता, उरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीता। पहला AD दी गल करनी है तो अपने ADE ट्रायंगल चक ली, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू AD इनटू EM। ਜਦੋਂ DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ DBE ट्रायंगल ਚੱਕ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ AE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਹੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਏਰੀਆ ਆਫ ADE ਇਕੁਅਲ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, AED ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, AED ਬੋਲ ਦੋ ADE ਬੋਲ ਦੋ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ AED ਬੋਲ ਦੋ ADE ਬੋਲ ਦੋ EAD ਬੋਲ ਦੋ EDA ਬੋਲ ਦੋ ਗਲਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ EC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ EDC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕ ਲਈ, EDC ट्रायंगल दे रहे देखो हाफ इनटू बेस इनटू अगेन हाइट कितनी है DL, मतलब जो इधरली साइड की गल कर रहे हो तो हाइट EM ले लो, जो इधरली साइड की गल कर रहे हो तो हाइट DL चक लो। और तक किसी डाउट है दसो, और तक हो गया, उस तो बाद सो चेक करो, इन्होंने क्वेश्चन मान लो 4, इन्होंने क्वेश्चन मान लो सॉरी इन्होंने मान लो 5 फिर 4 तक चल गई सी, इन्होंने मान लिया अपने 6। हुन चेक करो थोड़ा मेन मोटिव की सीगा AD अपॉन DB ਨੂੰ AE अपॉन EC ਦਿਖਾਣਾ, AD अपॉन DB ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਣਾ AE अपॉन EC ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ A1 ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ADE ADE, ਉੱਪਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਿਚਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਹੈ DBE, ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਹੈ EDC, ਪੂਰੇ ਕੋਣ ਹੈ ਇੱਕ ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ DBE ट्रायंगल DBE ट्रायंगल, ਇੱਕ ਚ ਹੈਗਾ ADC ट्रायंगल, EDC ट्रायंगल दोबारा बना लिया। A B C D
दोनों ज्वाइन किया, ये दोनों ज्वाइन किया, इधर परपेंडिकुलर, ठीक है, इन्हों एम नाम दिता सी, इन्हों एन नाम दिता सी। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ AD upon DB ਨੂੰ AE upon EC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ A ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਗੇ ਜਦ ਬਾਈ ਚਾਂਸ A ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ A ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇਖੋ ADE ਤਾਂ ADE ਦੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ DBE ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ EDC ਦੇ ਮਤਲਬ DBE ਨੂੰ A ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ 9th क्लास ਚ ਥਿਓਰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਟ ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਟੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਏਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ ਇसी ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਏਬਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੀ इसी ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ अगर दो ट्रायंगल्स इक्को बेस ते हैं ते सेम पैरेललाइज ते हैं तो वो दोनों का एरिया की होता है सेम होता है तो तुम डायरेक्ट लिखोगे तुम कहोगे एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल एरिया ऑफ EDC as they are lie on same base केड़ा बेस है DE सेम बेस DE and between same parallel line DE and BC कि अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस ते होवे ते सेम पैरेलल लाइंस दे विच होवे तो उनका एरिया की हुंदा है सेम हुंदा है तो तुसीं चेक कर सकदे हो कि अगर ऊपरली चीज दे इक्वल है निचली चीज दे इक्वल है सो क्लियरली बाय इक्वेशन 5 and 6 फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन तो आप चेक कर सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दे इक्वल है तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड दे इक्वल हो जाएगी AD upon DB के इक्वल हो जाएगा AE upon दसो ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ नादिरा स्टेटमेंट भी समझाइयो if a line drawn parallel to one side of triangle which intersect the other two side at a distinct point then these two lines are divided in the same ratio मतलब जो AD है जो AD upon DB है वो किहदे कोल हुआ AE upon EC ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ B ਤੇ E ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ D ਤੇ C ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ इस ते परपेंडिकुलर ड्रॉन किया इस ते परपेंडिकुलर ड्रॉन किया ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ M ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ N ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AD ਅਗਰ ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ AD ਕਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਆ ਰਿਹਾ AD ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ADE ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ मतलब जब इधरले की गल कर रहे हो तो हमेशा हाइट EM लियो हाफ इनटू बेस कौन है AD दा AD है ते हाइट कौन है EM है नीचे गल करनी है DB दी गल किवें करांगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE हुन इस ट्रायंगल एरिया क्या हुआ हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेस और तो चक्की जा रहा हाइट इधर EM इधर DN थ्योरम प्रूफ च कुछ भी नहीं है बेस तो उधर देख के लिखी जाते हैं हाफ इनटू बेस कौन है AD ते हाइट कौन है EM हाफ इनटू बेस कौन है DB हाइट कौन है EM AD अपॉन EM AD मल्टी EM सॉरी दोनों च जांदी है डिवाइड तो दोनों ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ डिवाइड हाफ ਨਾਲ हाफ ਦੇ EM ਨਾਲ EM ਕੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ AE ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ AE ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਗੇਨ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ADE हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस कौन है AE ते हाइट कौन है DN नीचे गल करनी है EC दी गल किवें करोगे इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल च हाफ इनटू
जब एबल ट्रायंगल की गल कर रहे हैं उरे बेस कौन है EC ते हाइट कौन है DL हाफ इनटू बेस इनटू हाइट दोनों च की चेंज है डिवाइड तो दोनों की करते हैं अपन डिवाइड हाफ ना हाफ कट गया DL और DL कट गया फिर ओके एडी अपॉन सॉरी AD अपॉन में कौन था DB D ठीक है और तो क्या आ गया अपना एबल चीज आ चुकी है हुन आप देख रहे हैं ऊपर उरे भी AD है उरे ऊपर भी ADE है नीचे उरे DB है उरे नीचे EDC है DBE ट्रायंगल ਤੇ EDC ट्रायंगल ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਗੇ they are lie on the same base and between same parallel line ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਸੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦੈਟਸ ਮੀਨ AD upon DB is equal to AE upon EC hence proved 6.2 थ्योरम इसका नाम है कन्वर्स ऑफ BPT मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर सेम है स्टेटमेंट दिखाया आ सकता है हुन ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ चल ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 6.1 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਵੰਡ ਦੋਗੇ AD DB AE EC मैं पूरे तक रुक जा करूंगा कि A वाला लाइन ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੋ AD DB ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ AE EC कभी भी कहीं भी फिगर बना दा मैं ट्रायंगल बनाता मगर अगर कैन भी कोई भी मान लो एबल चीज बनाते मान लो A B C मान लो सब नाम चेंज करते हैं पेपर इसी तरह लग जाए थोड़ा P Q R S T जिਵੇਂ A वाली साइड ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ कहती ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ब्रेक कर रही है ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ देखो ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਟੋਨ क्या आएगा कि जो ST है ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਹੈ P Q ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ RS SP ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾ RT TQ मतलब जितने जो साइड ए पैरेलल ब्रेक करते हैं उतनी तोड़ दो RS SP इक्वल RT TQ जब मान लो M बना दी ट्रायंगल कुछ भी X Y Z W U कुछ भी बनाती ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ A ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ YU UX इक्वल YW WZ समझ चली मतलब जिन्हें ब्रेक कर रही है ना उत्थों ही तोड़ दो पूरे फॉल हो रही है तो YU U के था YU UX इक्वल YW WZ समझ चली तो देखो उन इस थ्योरम की तोड़ दो कुछ भी चीज अपने आप बोल लिया हो ये जो भैया जी आपको ऊपर नीचे कर दिया मतलब जिਵੇਂ AD BD है आप H BD AD हां जे BD DA कर रहे हो तो EC EA करने मतलब अगर इधर एम आ रहे हो तो इधर भी एम ही आओगे जे इधर एम जा रहे हो तो इधर भी एम ही जाओगे मतलब सेम चलता है एम ना होवे इधर तो कहता है AD DB इधर कहता है EC ये काम नहीं या तो AD DB इक्वल AE EC कह दो या DB AD इक्वल EC EA कह दो गल ਹੁਣ ਇਸ ਥਿयोरम ਜਾ ਰਹੇ ਮੇਨ 6.1 ਥਿयोरम ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ 6.1 ਦੀ ਥਿयोरम ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ if a line divide any two side of triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side मतलब ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ ਕੰਮ मतलब ਕੋਈ ट्रायंगल ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ट्रायंगल है ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ मतलब AD DB ਇਕੁਅਲ ਹੈ AE EC ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ पैरेलल होगी मतलब अगर कदे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਰੇਸ਼ੋ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ मतलब ਉਹਨੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਾਣੇ ਕਿ जो DE है वो पैरेलल है
आपने प्रूव करना DE पैरेलल किहदे इक्वल है BC यानी गल समझ लगी स्टेटमेंट पढ़ो इफ अ लाइन अगर कोई लाइन डिवाइड करती पई है टू साइड ऑफ ट्रायंगल नु ट्रायंगल दी दो साइडां नु कोई लाइन डिवाइड करती पई है सेम रेशियो च कोई लाइन है ट्रायंगल दी दो साइडां नु सेम रेशियो च डिवाइड करती पई है देन वो जिहड़ी लाइन होगी वो पक्का पैरेलल होगी किहदे थर्ड साइड ते समझ लगी उसका बिल्कुल कन्वर्स है हुण दा प्रूफ देखो बहुत छोटा प्रूफ है इसका उसके कंपैरिजन ना सेम एज पहला चल चल लोड पैगी तक कंस्ट्रक्शन कर दांगे ये देखी जाओ अपने की प्रूफ करना DE पैरेलल BC चलो ओदी स्थ अपने ए वाली चीज प्रूव करनी सीगी ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ AD ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ DB ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ AE ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ EC ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DE ਪੈਰਲਲ BC ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ DE ਨੂੰ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ ਹੈ मान के चल पो पैरेलल है अब मान के चल पड़े लेट अस अज्यूम हम मान के चल पड़ते हैं क्या मान के चल पड़ते हैं कि जो DE है वो पैरेलल नहीं है BC अब की मान के चल पे DE BC दे पैरेलल नहीं है आपने प्रूफ करनी है DE BC दे पैरेलल अपन मान के चल पे पैरेलल नहीं है कितने कितने दिक्कत आ जूगी अपन फिर मजबूरन मानना पऊगा भी पैरेलल हैगी है अपन एक बार मान के चल पे कि DE BC दे पैरेलल नहीं है करते जावांगे कितने कितने अपन दिक्कत आ जूगी फिर आप कहते ठीक है भाई DE BC दे पैरेलल होगी पहले आप मान के चल पे कि DE BC दे पैरेलल अगर DE BC दे पैरेलल नहीं है तब कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगी जो मैं BC की लाइन है अगर DE पैरेलल नहीं है तब कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगी लेट कर लो कोई लाइन कोई भी कह दो DE डैश कुछ भी नाम दो E डैश F दे दो कुछ भी दे दो लेट कर लो कि DE डैश पैरेलल है BC आप की लेट करके चलते हैं लेटर चाहे E डैश का ओरिजिनल हुए आप लिख लो लेटर DF पैरेलल BC मैं मान के चलते हैं कि DE BC दे पैरेलल नहीं कोई होर ही साइड है DF जेडी BC दे पैरेलल है तुम दसो अगर DF पैरेलल है BC दे तो की लिखांगे जवाब दे दो जल्दी शाबाश बहुत अच्छा कि अगर DF पैरेलल है BC दे ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗ ਰਗ ਚ ਵਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ AD upon DB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ AF upon FC ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ AD by DB ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਗਾ AF upon FC ਦੇ ਕਿਵੇਂ by BP ਕਿਵੇਂ by BP दोबारा तीसरा मैंने प्रूव करनी है DE पैरेलल BC मान के चल पहले पैरेलल नहीं है जे नहीं पैरेलल कोई ना कोई तो पैरेलल होगी मान के चल पे DF पैरेलल BC दे अगर DF BC दे पैरेलल है तो AD upon DB इक्वल किधर होगा AF upon FC दे पर इक्वल तो नहीं गिवन है इक्वल मेरे ही आ गया गिवन की है AD upon DB इक्वल है E upon EC आ मेरा की है AD upon DB इक्वल AF upon FC मतलब कुछ तो गड़बड़ है AD upon DB ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AD upon DB ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਸੋ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 192 AD upon DB ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ AD upon DB ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ मतलब दोनों भी आपस में इक्वल हो गया मतलब जो AE upon EC है वो किधर इक्वल हुआ AF upon FC AF upon किधर इक्वल हुआ FC लेकिन आज तक प्रूफ नहीं है उस तो मैं दोनों साइड +1 करता क्यों कितना वो दसो +1 करता जब +1 कर दांगे तो की हो जाएगा चेक करो AE एलसीएम लॉन्ग रे EC एलसीएम जो AE + EC अपॉन EC के देखो जो एलसीएम क्या जो FC एलसीएम जो ऊपर क्या जो AF + FC AE + EC AE + EC AE + EC पूरी की बन गई AC AF plus FC AF plus FC पूरी की बन गई AC AC वाला AC कट गया तो अब तो क्या आ गया AC इक्वल FC AC के देखो लग गया FC दे EC के देखो लग गया FC दे EC के देखो लग गया FC दे हाउ इट इज पॉसिबल जितनी EC है उतनी ही FC है कि पॉसिबल हो सकता है एक पॉइंट तो शुरू हो रहा है
EC ਇਕੁਅਲ FC ਆ ਗਿਆ। EC FC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ F ਤੇ E ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਲ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। EC ਮਾਈਨਸ FC दोनों इक्वल है तो दोनों की माइनस की होगी 0 होगी, मतलब EC ਤੇ FC ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਚਲੇ ਰੂਲ ਜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। EC ਤੇ FC ਇਕੁਅਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਮਾ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਤੱਕ ਵੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣ coincide, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣ coincide। it is possible only if it can be possible only if E and F coincide with each other, मतलब E ਤੇ F अलग-अलग पॉइंट नहीं है, वो इक्को पॉइंट है, तो मतलब ਜਿਹੜੀ DE ਆ ਉਹ BC ਦੇ ਪੈਰਲਲ क्योंकि मैं धक्के नाल मान के चलिया सीगा कि DE BC ਦੇ पैरेलल नहीं है, कोई DF पैरेलल है BC ਦੇ। मैं धक्के नाल मान के चलिया सी कि DE BC ਦੇ पैरेलल नहीं है, कोई DF है जो BC ਦੇ पैरेलल है। लेकिन मैंने मजबूरन की हो गया कि F ਤੇ E अलग-अलग पॉइंट नहीं है। जे तुसी DE BC ਦੇ पैरेलल नहीं लोगे ना, कोई और लाइन ले लोगे तो पक्का उसी ਦੇ इक्वल आ जाएगा, मतलब तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि DE BC ਦੇ पैरेलल। तो इन शॉर्ट इस थ्योरम में अपने कितना कि ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन किया है कि अगर कोई लाइन किसी टू साइड्स को सेम रेशियो से डिवाइड कर रही है तो वो लाइन पक्का की होगी पैरेलल होगी। मैं मान के चल पाया भी ए लाइन इधर पैरेलल नहीं है। स्टेप वाइज कि मैं सोचोगे पैरेलल प्रूफ करना है, मान के चल पाओ पैरेलल नहीं है। जे पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो पैरेलल होगी। स्टेप वाइज हम सोचोगे पैरेलल प्रूफ करनी है, मान के चल पाओ पैरेलल नहीं है। जे ए नहीं पैरेलल तो कोई ना कोई तो पक्का पैरेलल होगी, तो डीएफ किहदे पैरेलल होगी बीसी। अगर पैरेलल होगी तो बीपीटी थ्योरम में तो अपन चंगी तरह रटाता केवल चीज इक्वल होगी, जबकि इक्वल तो ये भी गिवन है AD upon DB दे इक्वल है, AD upon DB दे इक्वल, तो दोनों आपस इक्वल होंगे। हम दोनों आपस इक्वल हो गए। हुन मैंने चाहिए AE upon EC इक्वल AF upon FC हो गया। मैं चाहूंगा कि दोनों जो ऊपरली चीज या निचली चीज कोई ना कोई तो सेम होवे। मैं की करता दोनों साइड +1 करता, दोनों साइड की करता +1 करता, +1 लेके एलसीएम लेके एवन चीज आ गई तो EC इक्वल टू FC आ गया। EC ਤੇ FC इक्वल होंगे होंगे जब F ਤੇ E की करेंगे कोइंसाइड करेंगे, मतलब F ਤੇ E अलग-अलग पॉइंट नहीं हैगे, वो इक्को ही पॉइंट है, मतलब जो DE है वो किधर पैरेलल हो गया BC। तो सिर्फ 1.5-2 मिनट की थ्योरम से है, सिर्फ एन एक गल कि मान के चल पे ए लाइन इधर पैरेलल नहीं है, कोई और साइड इधर पैरेलल है। थ्योरम भूल नहीं सकते जिस डायरेक्ट स्टेप वाइज करो। पैरेलल प्रूफ करनी है, मान के चल पो पैरेलल नहीं है, जे पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई पैरेलल पक्का होगी, जे पैरेलल है तब बीपीटी लगा लो। इक्वल आ गया, इक्वल तो अपन गिवन भी है तो दोनों आपस इक्वल। अगर दोनों आपस इक्वल आ गए अपन चलना है चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, तब +1 करता है। एलसीएम लेना होता है, ऐड करना होता है, कटिंग करनी होती है, ये इक्वल आ गया। जे दोनों इक्वल है एक कदों पॉसिबल है जो दोनों की कर जान कोइंसाइड कर जान, मतलब E ते F अलग-अलग पॉइंट पे दे आता सेम पॉइंट, मतलब जो DE है उसके पैरेलल है BC के पैरेलल है। तब दोनों थ्योरम तो ये सीखने को मिला कि कदे भी तुहानू क्या चाहे कि कोई साइड कोई किसी साइड दे पैरेलल है तो सेम रेशियो च बंटन गया। अगर तुहानू कहता कि कोई साइड है जिहड़ी सेम रेशियो च बन रही है तो पक्का लाइन क्योंकि पैरेलल। समझ में आ गई?